Good morning, students. Again, you're welcome. You are welcome on the YouTube channel of the Central Public Academy, Chori Chora Gorakhpur. Students, I am today I'm going to tell you about the third chapter of your Moment book, and the name of the chapter is the Iswaran, the Storyteller. So, students, basically in this chapter, you will know about a person who is very hypothetical, who is very imaginary, and who believes in the ghost and supernatural powers. So let's understand after reading this story that what is going on in this story and what we are expected to learn and understand about this chapter. So let's start. So before we start, there is the introduction that one night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? So in this, basically I would like to introduce the main characters of the chapters. So basically this story is based on the two characters. Their name are the Mahendra, servant of the Mahendra is the main character of the chapter, and there is one person who is in his assistance, who is in his help, and his name is the Iswaran. And Iswaran is very funny and very comic personality, and he always used to entertain his honor his master Iswaran by telling him a lot of stories based on the different topics, but the main motto was to entertain his honor. He is the very faithful servant, and he is very faithful caretaker of Iswaran. So let's understand what going on in the story. तो कह रहा है कि द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन महेंद्रा बाई नेम. तो बेसिकली ये स्टोरी जो है वो एक ऐसे युवक की कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा हाइपोक्राइट पर्सन है, बहुत ज़्यादा वो अंधविश्वासी सुपरस्टिशियस पर्सन है, जो भूत प्रेत जादू टोने जैसी जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उन पे वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है. तो ये कहानी जो है वो महेंद्र को एक गणेश नामक व्यक्ति द्वारा सुनाया गया था. महेंद्र बाई नेम, ही वाज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म व्हिच ऑफर्ड ऑन हायर एंड सो ऑन. तो वो जो था वो एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर क्लर्क था, और वो सुपरविज़न का भी काम करता था, सुपरवाइज़र का भी काम करता था. तो उसको जो फर्म थी वो एडहॉक बेसिस पे या प्राइवेट टर्म एंड कंडीशंस पे उसको अपने यहाँ उसने रखा हुआ था, जिसका मुख्य काम क्या था. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site, the various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. तो ये कंपनी जो है वो बेसिकली फैक्ट्रियाँ, बांध, पुल जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शंस थे उन पे काम करती थी, और महेंद्र का काम जो था वो वहाँ पे जा कर के उस काम की क्वालिटी को चेक करना था, उसको सुपरवाइज करना था, उसको निरीक्षण करना होता था. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his हेड ऑफिस. तो जैसे ही उसको हेड ऑफिस से जहाँ जहाँ मतलब आदेश आता था, ऊपर से ऑर्डर आते थे कि आज आपको यहाँ जाना है, आज आपको यहाँ का काम देखना है, तो वो उस हिसाब से उसका हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता था, और वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता रहता था, ट्रैवल करता रहता था. फ्राम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट्स. तो उसका काम जो था वो एक कोल माइनिंग एरिया से, यानी कोयले की खदान वाले क्षेत्र से लेकर के रेलवे के पुल बनाने वाली जगह तक होते थे. फ्राम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट. कुछ महीनों बाद वो एक केमिकल प्लांट में चला जाता था, एक रसायन बनाने वाली फैक्ट्री में चला जाता था, विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं और लोकेटेड होती थी. इट मीन्स द होल सिनेरियो ऑफ द paragraph is that Mahendra job was not the stable job. There was a lot of place changing movement was continued. His job was basically the field work job. उसकी जो जॉब थी वो बेसिकली फील्ड वर्क की जॉब थी. He was a bachelor. तो ईश्वरन जो था वो एक बैचलर था, मीन्स अनमैरिड पर्सन था. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whatever it was. An ill-equipped
सर्किट हाउस आर अ मार्केट शिफ्ट आर द टेंट हाउस ऑफ द स्टोन क्वेरी। तो जो महेंद्र था वो एकदम बैचलर था और वो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन था। इट मीन्स वो बहुत ही सिंपल लिविंग जीने वाला, मतलब एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। और उसके कैरेक्टर की सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, ढाल लेता था। चाहे वो अच्छे जगह पे जाए या फिर बहुत कम सुविधाओं वाले किसी वीरान रिमोट एरिया में चला जाए, फिर भी उसकी जो पेशेंस लेवल था वो बहुत हाई था और वो अपने आप को हर तरह के सिचुएशंस में एडजस्ट कर लेता था। बट वन असेट्स ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन। तो महेंद्र के पास जो इकलौती संपत्ति थी, जो उसकी मतलब कुल जमा पूंजी थी, वो था उसका नौकर जो था, सर्वेंट जो था, कुक जो था, वो था ईश्वरन। तो ईश्वरन जो था वही समझ लीजिए आप कि उसकी पूरी मतलब एक प्रॉपर्टी थी, वो एक असेट्स की तरह था उसके लिए। ऐसा क्यों था? द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू द महेंद्रा एंड फॉलोज हिम अनकम्प्लेनिंगली वेन एवर ही वॉज पोस्टेड। तो कुक जो था वो महेंद्र के साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ था और बिना किसी शिकवे शिकायत के, बिना किसी गिले शिकवे के वो उसके साथ जहाँ जहाँ उसका ट्रांसफ़र होता था, जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग होती थी, जहाँ जहाँ उसको कंपनी की तरफ से भेजा जाता था, वहाँ वहाँ उसके पीछे पीछे बिना कोई शिकायत किए उसके पीछे पीछे पहुँच जाता था। ही कुक फॉर महेंद्रा, washed his clothes and chased away with his master at night। तो वो अपने मालिक के लिए, महेंद्र के लिए भोजन बनाता था, उनके कपड़े धुलता था और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपनी अच्छी अच्छी बातों से, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए, अपने जो इंटेलेक्चुअल उसकी कैपेबिलिटी थी, जो उसका बौद्धिक स्तर था, जो उसके मस्तिष्क की उपज थी, उसका इस्तेमाल करते हुए वो उसको रात में बहुत अच्छी अच्छी अपने मालिक को कहानियाँ सुनाता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एंसिडोट्स ऑन वेरी सब्जेक्ट्स। तो वो एक ऐसा करेक्टर था, वो एक ऐसा शख्सियत था जो कई तरह की कहानियों को गढ़ने में माहिर था। इट मीन्स ही वॉज कैपेबल टू क्रिएट हिज ओन स्टोरीज एंड द स्टोरीज वर एंडलेस। मतलब वो जो कहानियाँ गढ़ता था, वो जो कहानियाँ बनाता था, वो एंडलेस होती थी। मतलब उनका कोई और छोर नहीं होता था, वो टीवी सीरियल की तरह होते थे। मतलब उसमें वो कंटिन्यूटी कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देता था कि फिर आगे उस कहानी में वो जोड़ करके एक नई कहानी जो है वो तैयार कर सके। और उसकी कहानियाँ जो होती थी वो सबसे बड़ी बात क्या होती थी, फिक्सियस होती थी, मनगढ़ंत होती थी, इमेजिनरी होती थी, काल्पनिक होती थी, जिनका मतलब जो वास्तविक दुनिया से कोई भी संबंध नहीं होता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of the desolated landscape with no shops visible for miles around। तो ईश्वरन के अंदर एक और भी बहुत बड़ी खूबी थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा नेचुरल टैलेंट था कि वो उस जगह में भी जहाँ पे एकदम सुनसान होता था, जहाँ पे एकदम आइसोलेटेड प्लेसेस जो होते थे, जो मतलब सिविल जो कॉलोनीज होती थी, वहाँ से काफ़ी मतलब दूर जो रिमोट एरिया होते थे, जहाँ पे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती थी, या फिर वीरान क्षेत्र जो होते थे, वहाँ पर भी वो अपने स्किल के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा वो सब्जियां वगैरह जो है उन मीलों, उन निर्जन स्थानों पर भी वो उगा लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc seed shelter at the new workplace। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन था, बहुत ही कमिटेड पर्सन था। इट मीन्स उसका जो कमिटमेंट था अपने काम को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और वो उसको इस तरह से दिखाता था कि जब भी वो ईश्वरन जो था अपने मालिक के साथ, महेंद्र के साथ किसी नई जगह पे जाता था, तो 1 घंटे के अंदर ही या कुछ ही घंटों के अंदर वो नई ताज़ी सब्जियों से एक बहुत अच्छी डिश जो है तैयार करके उसको खिला देता था।
Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. तो महेंद्र जो था वो सुबह सवेरे जल्दी उठ करके और नाश्ता करके अपने काम पे लंच ले करके अपने साइट पे निकल जाता था, अपने काम पे निकल जाता था. Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. तो ईश्वरन जो था वो अपने मालिक के वजह से वो भी बहुत जल्दी सवेरे बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाता था और फिर उसके बाद वो आराम से अपने कपड़े धुलता था, जो उनके रहने का स्थान था उसको धुलता था, उसको साफ़ करता था. इसके बाद फिर वो अपने ऊपर कई बाल्टी पानी जो था वो अपने सर पे डालता था, मतलब एक लंबा स्नान करता था वो. और इसके बाद धीरे धीरे अपने मन में अपने भगवान की बहुत देर पर प्रार्थना भी करता था. द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग to hundreds of pages. Its imaginative, descriptive and narrative service would hold ईश्वरन in thrall. तो उसके बाद फिर वो बैठ करके दोपहर का लंच करने के बाद वो बैठ करके कुछ देर तक कुछ किताबें पढ़ता था. और वो किताबें जो थीं वो काफ़ी प्रसिद्ध तमिल लेखकों की किताबें होती थीं, जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांच भरा होता था और उसमें सैकड़ों पृष्ठ होते थे उन किताबों के. और उसमें जो उसकी कहानियाँ होती थीं वो ईश्वरन को रोमांच से भर देती थीं, उसके अंदर एक ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार कर देती थीं. हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड. तो वह जिन भी तमिल राइटर्स के किताबों को पढ़ता था या उनकी स्टोरीज को पढ़ता था तो उसके बाद वो उस थीम के बेसिस पे उस मतलब जो भी उसका सेंट्रल थीम होता था, जो भी उस कहानी का आधार होता था, उसके आधार पे वो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए एक नई फिलॉसफी, एक नया अपने दिमाग का एक ट्रेंड वो पैदा करता था. When he was narrating even a smallest of things, events, he would try to work in suspense and surprise ending into the account. तो जब वो उदाहरण के तौर पे जब वो किसी छोटी सी बात को भी अगर अपने मालिक को या किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करता था तो उसमें वो बहुत ज़्यादा उसमें कल्पना, रोमांच और एक तरह का सस्पेंस जो है, एक तरह का संशय जो है वो उसमें वो भर देता था. ये उसके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी थी, उसका एक अपना पर्सनल स्किल था. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे. उदाहरण के लिए अगर उसको ये कहना होता था कि उसने ये बताना होता था कि सड़क पे आंधी या तूफान की वजह से कोई बड़ा सा पेड़ जो था वो सड़क पे आकर के गिर गया था, तो वो सीधे इसको नहीं कहता था, वो इसको बात को घुमा करके बोलता था. तो वो उसमें कुछ अपना मिर्च मसाला जो है वो लगा करके उसको और ज़्यादा हाइपोथेटिक बना देता था और ज़्यादा उसमें हाइपो क्रिएट करता था, उसका मतलब बवंडर बना देता था, उसको बहुत ज़्यादा सस्पेंस में डाल देता था, लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें वो रोमांच भरने की कोशिश कर देता था. तो बोलता था कि he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. The road was deserted and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast laying sprawled across the road. तो वो ये बोलता था कि उसने अपने आईब्रो को क्या करता था, मतलब एकदम से बड़ा कर लेता था और उसके बाद वो अपने हाथों को ऐसे मतलब एक नाटक करके या उस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा अपने अंदर से उसका विश्लेषण करने के बाद उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता था, उसको मतलब करके दिखाने की अपनी भाव भंगिमा ऐसा बनाता था कि इससे वो बता सके कि रास्ता जो था वो एकदम से सुनसान था और वो एकदम अकेला था. तभी वो देखता है कि एक बहुत विशालकाय जानवर की तरह कोई चीज़ है जो झाड़ियों को चीरते हुए सीधे आती है और सड़क पे आकर के गिर जाती है. बट I was half inclined to turn and go back.
और वो बोलता है कि जैसे ही मैंने सड़क पर देखा, मैं लगभग अब वहाँ से मुड़ने ही वाला था, पीछे भागने ही वाला था, बट आई केम क्लोजर, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं उस चीज़ के और नज़दीक गया। आई सा दैट इट वाज अ फॉलन ट्री, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी टहनियाँ डालियाँ जो थीं वो सड़क पे इधर उधर बिखर गई थीं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेलीज इन क्रिटिकली। तो महेंद्र जो था वो बिना कोई तर्क वितर्क किए, बिना कोई उसकी आलोचना किए, बिना किसी टीका टिप्पणी की, वो ईश्वरन की इन डरावनी कहानियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना करता था अपने तंबू में। और जैसे जैसे ईश्वरन उस चीज़ में अपना एक्सप्रेशन भरता था, अपनी बातों को कहने के लिए जैसे जैसे वो एक्सप्रेशन का अपने तड़का लगाता था, वैसे वैसे ईश्वरन जो था वो काफ़ी डर जाता था और वो उस चीज़ में एकदम से इन्वॉल्व हो जाता था। नेक्स्ट, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन वुड बिगिन, देयर इज अ रिचली वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड द लॉग्स एंड हॉल ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट्स। तो ईश्वरन अपनी एक नई कहानी जो है वो उसको ये महेंद्र को सुनाना शुरू करता है, और वो बोलता है कि मैं जिस जगह से आया था वो जगह जो थी वो टिम्बर के लिए फेमस थी। टिम्बर मतलब होता है इमारती लकड़ी, जो बेसिकली प्लाईवुड वगैरह या फिर विंडो डोर्स ये सब बनाने के लिए यूज होते हैं। तो कहता है कि रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड द लॉग्स आर हार्ड ऑन द लॉरीज बाई द एलिफेंट्स। और वहाँ पे जो लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स होते थे, लट्ठे होते थे, उनको हाथियों पर द्वारा उठा करके ट्रकों में लोड किया जाता था, रखा जाता था। दे वर ह्यूज वेल फेड बिस्ट, और उनको बहुत भर पेट खिलाया जाता था, मतलब उन हाथियों को बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया जाता था। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. लेकिन जब वो कभी भी अपना आपा खो देती थी, जब वो कभी भी अपना मानसिक संतुलन खो देती थी, तो फिर अच्छे से अच्छा महाउत भी, अच्छे से अच्छा जो हाथियों के गाइड होते हैं उनको महावत बोला जाता है, महावत बोला जाता है हिंदी में। तो अच्छे से अच्छे महावत भी उनको नियंत्रण में नहीं ला पाते थे, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। तो इसके बाद ईश्वरन जो है वो अपनी छोटी जो कहानी है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और बोलता है कि इस कहानी में, मतलब जो कहानी है उसका मेन जो कैरेक्टर है वो एक हाथी है, और वो इस हाथी को लेकर के फिर एक अपनी कहानी जो है वो गढ़ना शुरू कर देता है, उसको बनाना शुरू कर देता है। कह रहा, वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज ऑल विल एट विल। तो उसने कहा कि एक दिन एक गोदाम से हाथी जो था वो भाग गया, उसने मतलब वो गोदाम में से बाहर आ गया और वो इधर उधर घूमने लगा। इसके बाद फिर वो जो झाड़ियाँ थीं उनको एकदम से इधर उधर दौड़ करके उनको रौंदने लगा, उनको बर्बाद करने लगा। इसके बाद फिर वो जो ज़मीन पे रेंगने, अब वो चूँकि हाथी का शरीर और पैर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए वो उसमें इधर उधर चलने की वजह से उसके पैर के नीचे आने वाले बहुत से कीड़े मकोड़े और रेंगने वाले जीव जंतु जो थे वो मारे गए। और फिर हर जगह उसने एकदम से उपद्रव वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दिया था। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। ईश्वरन वुड गेट सो caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in admiration of the mad elephant. तो वो पूछता है कि सर, महेंद्र से पूछता है कि क्या आपको पता है कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो क्या करता है। मतलब वो ये सब बातें करते करते इतना ज़्यादा खुद एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपने बिस्तर से कूद करके नीचे ज़मीन पर छलांग लगा देता है और बिल्कुल एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। तो इस तरह से वो एक नई कहानी जो है उसका थीम जो है, उसकी जो कथा होती है
उसकी जो आधार होती है उसको वो तैयार कर लेता है। So students, this chapter is very lengthy, so it's not possible that to cover all the portion in a single video. So the remaining parts of the chapter we will discuss in the next video. So I request you to listen this video carefully, try to understand the concept clearly, and if you have any problem you can discuss me later. Thank you very much for listening and hearing and watching this video. Thanks a lot.